Hello, 6th class. 6th class, this is our chapter 4th, globes and maps. This is the part 2nd video of this chapter. Have you watched the previous video? Students, in previous videos, we already studied about the maps, globes, map projection. Okay, we already have completed these topics, but in this video we will read only the types of maps, features of maps, Google Maps and GPS, and difference between globe and map. Is that clear? So now let's start the chapter. Before going about these topics, let me recall the previous topics. That is globe. What is globe, student? Globe is a model of the earth showing important features like continent, oceans, countries. Is that clear? Map. Map is a representation of the curved surface of the whole earth or part of it on a flat sheet of paper according to a chosen scale. Is that clear? The uses of map. Maps can be carried easily everywhere. हम मैप को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं. They display accurate and detailed information about small areas also. Okay, ये small area की पूरी information अच्छी तरह से देते हैं. They come in many varieties of themes that show different kinds of information. They are used for making comparisons of various values. Okay, maps are useful for students. The information provided by the map is easy to understand than the written information. Is that clear? जो चीज़ें हम देख कर आसानी से समझ पाते हैं वो ज़्यादा बेटर होती है than the written information. Okay? Students, when we have to study a part of the earth, we use a globe. You know na very well. But a globe has some disadvantages. For most among them are. कौन सी disadvantages होती हैं globe की? You know very well. The problem of carrying a globe. एक globe को हम क्या एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं? No. We can't keep a globe always with us. हम हमेशा ज़्यादातर अपने पास नहीं रख सकते उसको एक जब भी कहीं जाना हो. The globe does not provide a specific details of a particular place. इसमें क्या होता है ऑल ओवर पूरी की पूरी ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को दिखाया जाता है. ये एक पर्टिकुलर एरिया की स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दे पाते हैं. ओके, टू नो दैम वी विल नीड अ ह्यूज ग्लोब. अगर हमें ऐसा करना है तो बहुत ही ह्यूज ग्लोब चाहिए. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स वी टेक द हेल्प ऑफ मैप्स. और इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं? मैप को यूज़ करते हैं. Okay, and you know very well there are the 3 types of maps. Students, there are the 3 types of maps. First one is political map, physical map and thematic map. These are the types of maps. Okay, so अब हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझते हैं. Student, this is the political map, and the political map show boundaries of countries and of the state within the countries. They also show the location of cities and towns. Have you seen? आपको दिखाई दे रहे हैं पॉलिटिकल मैप में क्या शो हो रहा है यहाँ पे? दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. और इंडिया की यहाँ पर बाउंड्रीज शो हो रही है.
स्टेट शो हो रहे हैं, ओके, और स्टेट में जो सिटीज़ हैं, कैपिटल्स हैं, वो शो हो रही हैं, ओके. सो इंडियन पॉलिटिकल मैप शो बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज़, यू नो वेरी वेल. यहाँ पर चाइना है और चाइना के यहाँ पर यह बाउंड्रीज ये शो हो रही है. नेपाल, ये हमेशा बाउंड्री को शो करते हैं. यहाँ पाकिस्तान है और ये बाउंड्रीज हमारी इंडिया की यहाँ से तक है, ओके. ये एंड ऑफ द स्टेट ऑल्सो शो. स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, these are the states, okay, and also show the location of cities and towns and also the capital. Got it? Student, political maps show the international border, okay. Location of states, कि states कहाँ पर है, location of states. District and cities, political maps use different color to show different countries. A capital city may be marked with a star or a star inside a circle. Is that clear? ये देखो बिल्कुल शो रही है यहाँ पे. पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि सिटी को कैपिटल सिटी में बी मार्क्ड, उसको मार्क करके हम दिखा सकते हैं विद अ स्टार से, या और अ स्टार इनसाइड अ सर्कल ऑलरेडी गिवन हेयर. द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ शो विद द सर्कल. मध्य प्रदेश, इट्स कैपिटल इज भोपाल. छत्तीसगढ़, कैपिटल इज रायपुर, ओके. यहाँ सर्कल से शो हो रही है कैपिटल, एंड दिस इज अ पॉलिटिकल मैप. नाउ स्टूडेंट, दिस इज द फिजिकल मैप, ओके. फिजिकल मैप, these are used to identify landform and water bodies. Landform shows with the green color and water bodies. Is that clear? By using physical map, you can learn relative locations and physical characteristics of a place in a region. Physical maps use color, shading or contour lines to show relief. Physical map show physical features like mountain, okay, plateau, oceans, rivers, lakes, okay. These some physical map use color and shading to show elevation as how high and low, how high the land is above sea level, okay. The map key tells you a set of colors that stand for the various elevation above the sea level, okay. It means यहाँ पर जो कलर दिखाए गए हैं, शेडिंग जो दिखाई गई है, वो क्या शो करती है कि कौन सा एरिया सी लेवल से कितना ऊपर है, ओके. और ये फिजिकल मैप माउंटेन, प्लेट्यू, ओशंस और रिवर और लेक्स, इन सभी चीज़ों को शो करते हैं, ओके. और उनके लिए स्पेशल कलर भी यूज़ होता है, सच एज यहाँ पर ग्रीन कलर शो द लैंड एरिया, ओके, एंड ब्राउन कलर शो द माउंटेन एरिया, and water for water bodies. Is that clear? अब डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? फिजिकल मैप में क्या है, सिर्फ माउंटेन, प्लेट्यू, ओशंस, ये चीज़ें शो कर रहे हैं. लेकिन पॉलिटिकल मैप में क्या था? पॉलिटिकल मैप में क्या शो हो रहा था? इंटरनेशनल बॉर्डर, लोकेशन ऑफ स्टेट्स, ओके, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज़. Got it? And student,
third one map is thematic map. This is the thematic map. Or thematic map is used to show स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करते हैं. और वो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती हैं? दे कैन शो क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट है, ओके. डिफरेंट लैंग्वेज. फॉरेस्ट्री, कहाँ पर फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट्री. इंडस्ट्रियल एरियाज़, किन जगह पर इंडस्ट्री, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं. माइंस and land use and literacy rates or population density in a country. Okay. और यहाँ पर जो भी मार्क दिए गए हैं, ये ध्यान से देखो. यहाँ पे जो सिंबल यूज़ हुए हैं, जो लेजेंड और की यूज़ हुए हैं, वो ये बताते हैं कि कौन से पर्टिकुलर एरिया पर कौन से स्पेसिफिक चीज़ें हैं. ओके. यहाँ पर देखो लीड एंड जिंक, उसको किससे शो किया गया है? स्टार से. और वो कहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. ओके. द सेकेंड वन इज दिस सिंबल शो द कॉपर. अब आप यहाँ से देख के अकॉर्डिंग टू द लेजेंड आप अच्छे से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. Okay, this is the thematic map. And special purpose maps show you how things are distributed or spread out. और इस मैप से क्या पता चलता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहाँ तक फैली हुई है. ओके. अब आपको मैंने I showed you the three types of the maps. The first one is political, physical, and this one, the third map, thematic map. Okay. अब political map में क्या था? Political map show the international border, location of states, district and cities. Okay. ये political map ये show कर रहा था. Political maps use different colors to show different countries. Okay. And physical maps show physical features like mountains, plateau, oceans, rivers and lakes. Okay. And thematic maps show the specific kind of information such as climate, different language, forestry, industrial areas, mines, land use and literacy rates or population density in a country. Soil also. Okay. एक अनदर टाइप का भी मैप होता है टॉपोग्राफिक मैप. अब ये टॉपोग्राफिक मैप होता क्या है स्टूडेंट्स? लिसन दिस केयरफुली. ओके. टॉपोग्राफिक मैप show a three-dimensional world in two dimensions by using contour lines. Okay, लाइन से ये शो करते हैं. Mountain and valley are represented with concentric circle and these lines. Students, आप बिल्कुल ध्यान से देखो. This is a topographic map. Okay, और ये यहाँ पर जो लाइनें हैं, these are the contour lines. These are the contour lines. Okay. And this also show a contour is a line on a map joining two points at the same height. This is a standard method of showing relief in topographic maps. Okay. For example, अभी मैं यहाँ पर इंडिया में अगर मैं खोलूँ टॉपोग्राफिक मैप तो मैं जहाँ बैठी हूँ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर शो हो रही है. ओके. हियर आई एम. दिस शो दिस वन. ओके. पाकिस्तान, ये कॉन्टोर लाइन.
ओके। स्टूडेंट, जब भी हम अपने फ़ोन से निकालेंगे टोपोग्राफिक मैप, वो ऐसे शो होता है अगर हमें कहीं भी जाना होता है तो, ओके। और पर्टिकुलर जहाँ हम होते हैं वो उसको एक रेड सिंबल से शो करता है, दिस साइन, कि मैं यहाँ हूँ, ओके। ये कॉन्टूर लाइन, इज दैट क्लियर? It shows the weather condition like temperature, rainfall, wind, pressure and direction. वेदर मैप क्या शो करता है? एक तो टेम्परेचर की, हमारे दिन का और रात का टेम्परेचर क्या होगा, रेनफॉल कितनी बारिश होगी, विंड तेज चलेंगी, धीरे चलेंगी, कैसे चलेंगी, ओके, प्रेशर में होंगी, एंड डायरेक्शन ऑल्सो. सो वेदर मैप्स, दिस इज़ अ वेदर मैप स्टूडेंट. यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हैवी स्नो, ओके, स्नो. आपने कभी टेलीविज़न पे भी वेदर रिपोर्ट देखी होंगी, स्पेशली न्यूज़ रीडर आते हैं वेदर के बारे में बताने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि वो कैसे मैप को रीड करके आपको बताएंगे. इज़ दैट क्लियर? Reading a radar. This is imagery that the CBS 3 Eyewitness Weather team shows you all the time when you tune in. So I want to talk about and break down exactly what this imagery means when you are looking at it. So we'll go over to Storm Scan 3. So right now I've got Chelsea Ingram, meteorologist Chelsea Ingram. She's helping me direct the radar right now. So what are we looking at? Well, this is real-time data. This is not model data or a forecast. This that we're looking at is happening right now. And the reflectivity, or the colors that you're seeing there on Storm Scan 3, indicate rainfall and the intensity They of show that the rainfall. Okay. Now this loop goes from 3 hours ago up until now. So also we can see the movement of these showers and thunderstorms. Wind pressure. You can see kind of from southwest up to the kind of east and northeast. So that's how we're able to track these cells as well and expect where they are going to continue to move forward to. Now we'll talk more about the colors. So the green reflectivity that we see right there, that is going to be indicative of lighter rainfall. When you move into the yellows and the orange, indicative this of green moderate color rainfall, show the moving on to light heavy rainfall. And then when you see those bright red returns, that is going to be that heavy torrential downpour This shows type the heavy rain, rainfall, typically associated with thunderstorm activity. So the reflectivity, it mainly tells us about rainfall intensity, but it also can tell us what's going on inside a shower or thunderstorm cell. So right now you see where those really bright returns are, that pink and purple color, that can be telling us that there is hail embedded within this storm cell. So we also have another layer of data on top of this rainfall reflectivity, and those are the lightning strikes. And one another map is also called tourist map. अब ये tourist map है, okay. Sorry, not the tourist map. This is Google map, okay. आपके पास सभी के पास फ़ोन होता है और फ़ोन से हम क्या कर सकते हैं, गूगल मैप हमें शो करता है कि हमें जहाँ भी जाना है वहाँ का हमें आसानी से लोकेशन पूरी की पूरी हमें गूगल मैप से मिल जाती है, ओके. हमें कहीं भी जाना है तो गूगल मैप हमें उस चीज़ की क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है. इट मीन्स द सैटेलाइट. और ये कहाँ से होता है, ये सैटेलाइट जो ऊपर होती हैं वो हमें क्या करती हैं, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल कराती हैं. इट मीन्स द सैटेलाइट मैप्स अवेलेबल these days through internet on computers and mobile phones are a revolution in maps, okay. This latest technology offered by Google help us in getting satellite imagery called Google Map. Google Maps app act as an excellent route planner and gives route guidance टू द ड्राइवर थ्रू वॉइस इन सेवरल लैंग्वेज. अगर आपको भी कहीं जाना है और आपको एड्रेस तो पता है लेकिन वहाँ की लोकेशन का नहीं पता, तो आप क्या करोगे, फ़ोन से गूगल मैप से उसको ऑन करोगे तो फ़ोन आपको एग्जैक्टली वो लोकेशन बताएगा और आपको वहीं पर पहुँच जाएगा. और बीच बीच में वॉइस
नोट भी आते हैं कि आप कहाँ हो और जहाँ जाना चाह रहे हो वो पर्टिकुलर एरिया आपसे कितने किलोमीटर दूर है और आपको कहाँ टर्न करना है, कहाँ आपको किस रोड से जाना है, वो सारी की सारी एग्जैक्ट लोकेशन गूगल मैप से हमें पता चलती है। और एक और बात, अगर हम गूगल मैप से जा रहे हैं, अगर हम गलत रोड भी पकड़ लेते हैं तो एग्जैक्टली वो फिर दोबारा से हमें लोकेशन बताते हैं कि आपको कहाँ से जाना है और कैसे आपको पहुँचना है। ओके, एंड वन अनदर मैप इज़ टूरिस्ट मैप। अब ये टूरिस्ट मैप क्या होता है स्टूडेंट? These maps show place of tourist interest such as beaches, historical monuments, hill station and national parks. It means अगर टूरिस्ट को अगर कहीं जाना है या वो बीचेस पर जाना चाहते हैं, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स देखना चाहते हैं, हिल स्टेशन, नेशनल पार्क्स, तो वो क्या करते हैं, टूरिस्ट मैप को यूज़ करते हैं और वहाँ पर जितने भी सिंबल और साइन होते हैं वो वहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ओके, उस एग्जैक्टली प्लेस की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इज दैट क्लियर? दिस इज अ टूरिस्ट मैप। देखो इस टूरिस्ट मैप में भी ऑलरेडी क्या चीज़ दिखाई गई है, द ब्लू मॉस्क। ये दिखाने का मतलब है कि मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को या टूरिस्ट इंटरेस्ट, इसका मतलब कहाँ पर भी इंटरेस्ट है, जहाँ उनको जाना है, ये मैप वो चीज़ें शो करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट दिस वन इज़ द अनदर टॉपिक, फीचर्स ऑफ मैप। मैप के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज़ टाइटल, द सेकेंड वन इज़ मैप स्केल, डायरेक्शन एंड लेजेंड। ओके, एंड लेट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टाइटल। अब टाइटल क्या है स्टूडेंट? द मैप टाइटल टेल्स you what the map is all about. Okay, what the map is all about and what features it is supposed to display. It can be found on the top or bottom of the map. It means ये टाइटल हमें बताता है exactly कि मैप किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं और कौन सी फीचर उसमें शो हो रही है। ओके, ये आपको या तो बिल्कुल ऊपर लिखा मिलेगा टाइटल या बिल्कुल बॉटम में, मैप को जब हम सीन करते हैं उसको देखते हैं। Okay, the second one is map scale. A map scale is the ratio of the distance between two places on a map and the actual distance between those places or on the ground. It means क्या है कि ग्राउंड जब भी दो चीज़ों की लोकेशन के बारे में पता चलता है हमें ये उसकी रेशो, मतलब इट मीन्स मैप स्केल क्या है, ये डिस्टेंस की रेशो को बताता है, दूरी कि कोई दो जगह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। ओके, और कि वे जो दो प्लेस हैं वो एग्जैक्टली कितनी दूर है, ग्राउंड मीन्स एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लेस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल पर वो कितनी दूरी पर है, ये उसकी डिस्टेंस को, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, इट मीन्स ये रेशियो ऑफ डिस्टेंस को बताता है, दूरी को बताता है। इज दैट क्लियर? एंड द थर्ड वन इज डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, हैव यू सीन अ कंपास? आपने कंपास देखा है? कंपास भी क्या होता है, हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। और आपको पता है कि देर आर द 4 टाइप ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी 4 है। वो कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड west. Okay, these are the four main directions. And the legend. अब legend क्या है? Every map has a key or a legend at the bottom of the map to explain the symbols and color used in the map. Okay, जो legend होते हैं वो बिल्कुल बॉटम में मिलेंगे हमें मैप के, और वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, सिंबल और कलर यहाँ पर यूज़ होता है और वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। चलो अब हम इन चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको ये मैप दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ कुछ दिखाई दिया? मैप टाइटल, यस, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, दीज आर द टाइटल ऑफ मैप। एंड स्टूडेंट, दिस इज द मैप स्केल. Map scale, it shows
द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, अगर हमें मैप में शो करना है तो वो हम डिस्टेंस यहाँ पे शो करते हैं. दिस इज़ द मैप स्केल. ओके, दिस इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैप स्केल. इट इज़ कॉल्ड अ लाइनियर स्केल. Student, these are the compass. Sorry, this one is the compass, and compass, arrows or a figure on a map display the four cardinal direction. North, south, east and west. Okay, these are the cardinal direction. And intermediate direction, these are between the north and the east. This one is northeast, southeast, southwest and northwest. These are the intermediate डायरेक्शंस. और ये कंपास हम जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ये हमें उस चीज़ बताता है कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है. ओके. एंड स्टूडेंट, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ लेजेंड. इट मीन्स कन्वेंशनल सिम्बल्स इन मैप. अब ये कन्वेंशनल सिंबल है कि मैप पे ये सिंबल होते हैं. ये मैप सिंबल से शो करता है कि वो पर्टिकुलर सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ हुए हैं. ओके, आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से. ये सिंबल यूज़ हुआ है मेटल्ड रोड. अगर कहीं मैप में दिखाना है कि मेटल्ड रोड कहाँ है एग्जैक्टली या तो ये सिंबल वहाँ पे शो किए जाते हैं. दिस इज़ अनमेटल्ड रोड, नेशनल हाईवे, लेवल क्रॉसिंग, रेलवे ब्रिज, रोड और रेलवे एम्बैंकमेंट. ओके, एंड विलेज, चर्च, टेम्पल, एयरपोर्ट, हिल स्टेशन, trees, telephone line. So these are the list of conventional symbols there. Okay, अब क्या है स्टूडेंट, वी कैन नॉट पॉसिबल शो द डिफरेंट फीचर्स लाइक अ ट्री, अ माउंटेन, रेलवे लाइन और ब्रिजेस इन देयर एक्चुअल शेप और साइज. हम एक्चुअल शेप और साइज में इन चीज़ों को नहीं दिखा सकते मैप में. तो इनके फीचर्स को टू रिप्रेजेंट दिस फीचर्स वी यूज़ सम सिम्बल्स. इसलिए हम क्या करते हैं, उनके फीचर्स को दिखाने के लिए कुछ सिम्बल्स को यूज़ करते हैं. एंड दीज सिम्बल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैप्स बेटर. और ये सिम्बल क्या हो करते हैं, हम सिम्बल से हम मैप को आसानी से समझ सकते हैं. इज दैट क्लियर? एज स्टूडेंट, दिस डायग्राम शो द स्केच. ओके, अब ये स्केच क्या होता है, व्हाट इज द स्केच? Sketch is a rough drawing of a place or a route. Okay, किसी भी place की या route की क्या होती है, ड्राइंग करके ऐसे बताई जाती है. It may include landmarks or name of roads to help us locate the route, but it is drawn without a scale and the distance and the direction are not accurate. लेकिन इसमें क्या चीज़ें नहीं बताई गई होती हैं. एक तो इसमें सिंबल यूज़ नहीं होते हैं और एक इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन वो भी यूज़ नहीं किए जाते हैं. तो एक्यूरेट वो बिल्कुल भी नहीं होती वो चीज़ें. इट डज़ नॉट शो ऑल द डिटेल, और डिटेल भी इसमें नहीं बताई जाती. इट ओनली शो द नेसेसरी डिटेल. सिर्फ ये बताते हैं कि आसपास किसी चीज़ के आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं. जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है टेम्पल और उसके पास में मार्केट पड़ती है, फिर पार्क है और यहाँ पर नील का हाउस है. तो दिस इज़ अ स्केच करके बताते हैं ऐसे. जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आप अपने आसपास के लोकेशन को स्केच करके बताइए कि आपका घर कहाँ है, आपके घर के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप उस तरह से पर्टिकुलर स्केच बनाएंगे. ओके, अब दिस डायग्राम शो द प्लान. ओके, अब ये प्लान क्या है, ये प्लान एक पर्टिकुलर एरिया की डिटेल बताते हैं, वो भी लार्ज स्केल पर. ओके, ये क्या है, जैसे कि एक रूम की पर्टिकुलर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है थ्रू द प्लान.
सो ये एक रूम देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ब्लैक बोर्ड, यहाँ टीचर की टेबल है। ये इट मीन्स क्या है कि एक जगह की, एक पर्टिकुलर एरिया की लार्ज स्केल पर डिटेल को शो करता है। ये भी एक ड्राइंग है, रफ ड्राइंग। ओके, उस डायग्राम में एक क्लास के अंदर की सारी डिटेल दी गई थी, अब ये बाहर की है। ओके, प्लान इसमें क्या है, शोइंग द पोजीशन। अब पोजीशन इसमें बताई जा रही है कि कहाँ पर कौन सी जगह है। ओके स्टूडेंट, दिस डायग्राम शोज स्केच, दिस वन इज ऑल्सो स्केच। दिस डायग्राम शोज द प्लान इन अ प्लान ऑफ अ सिनेमा हॉल, कि सिनेमा हॉल का प्लान बनाया गया है कि कहाँ विंडो होंगी, कहाँ एग्जिट डोर है, ओके, कहाँ से एंट्री होगी। इज दैट क्लियर? Student, the most important way in which a sketch differ from both maps and plans is that it is not drawn to scale. It is usually drawn to show the position of a place or object with respect to some other places or objects. So a sketch usually does not show all the details of the area, but only those ones which are necessary, जो कि जरूरी हैं. A sketch may cover a very small area or quite a large one. Sketches can be drawn more easily than plans and maps. Okay, so now student, our chapter, this chapter is over. I think you got it. Keep reading. Okay.